गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, बहुत थोड़े दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जी मेन और नीट यूजी की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज मैं कराने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत काम आएगा। और इसको आप बहुत ही केयरफुल्ली वॉच करना। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगा। An incandescent bulb has a thin filament of tungsten that is heated to high temperature by passing an electric current. The hot filament emits black body radiation. The filament is observed to break up at random locations after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament. If the bulb is powered at constant voltage, which of the following statements is are true? So we are given four options. Option A, the temperature distribution over the filament is uniform. The resistance over small sections of the filament decreases with time. The filament emits more light at higher band of frequencies before it breaks up. The filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb. बच्चों, इन फोर ऑप्शंस में से मुझे करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखने में ये थ्योरेटिकल है, मगर इसको आंसर करने के लिए कुछ डेरिवेशन को सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। Now consider a small segment of the filament of length L and cross-sectional radius R as shown. बच्चों, मैं फिलामेंट का एक पोर्शन इसमें दिखाया हूँ और उस पोर्शन का एक स्मॉल सेगमेंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसका रेडियस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। इस छोटे से पीस का लेंथ L है और इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैपिटल T केल्विन है। This is a small segment of tungsten filament after a long time of use. So consider a small segment of the filament of length L and cross-section radius R as shown. Suppose in glowing condition, the equilibrium temperature of segment is T. The hot filament emits black body radiation. That is overall emissive power of the black body. प्यारे बच्चों, रेडिएशन के चैप्टर में मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा। इसको स्टीफेंस लॉ बोलते हैं। इसको कहते हैं ओवरऑल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी becomes equal to sigma into T power 4, where sigma is Stephen's constant. ओवरऑल एमिसिव पावर को कैलकुलस में कैसे लिखोगे? dq by dTA equals sigma T power 4. Now doing cross multiplication, dq by dt comes out sigma AT power 4, where capital A is surface area of the segment, capital T is equilibrium temperature of the segment, dq by dt is rate of emission of heat energy. Capital A surface area of the segment. प्यारे बच्चों, जो छोटा सेगमेंट दिखा है वो देखने में सिलिंड्रिकल होगा। सिलिंड्रिकल होगा तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप पढ़े हो, 2 पाई r into L. 2 pi r into L is surface area of the segment.
So it should be sigma into 2 pi RL into T power 4. This is dq by dt. So at equilibrium, the rate of production of heat must be equal to rate of emission of heat for the filament segment. बच्चों अगर उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ गया है, कांस्टेंट हो गया है, तो जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी उस सेगमेंट में, उसी रेट से हीट एमिट होगी, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाएगा. दैट इज फॉर द गिवन करेंट आई, rate of production of heat energy as per Joule's that should be I square R, where capital R is resistance of that segment, और rate of emission of heat of the filament, इसको हम लोग कहेंगे dq by dt. अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी उसी रेट से इंस्टेंटली एमिट हो जाएगी, तो हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, इसलिए टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा. उस छोटे से सेगमेंट के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रोयल अपॉन क्रॉस सेक्शन उसका होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल इंटू टी पावर 4. बच्चों यहाँ पे टी पावर 4 का एक्सप्रेशन बनाओगे तो आता है आई स्क्वायर रो अपॉन 2 पाई स्क्वायर सिग्मा इंटू 1 बाई आर क्यूब. 1/4 पार्ट बोथ साइड का लोगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सेगमेंट टी की वैल्यू आती है आई स्क्वायर रो अपॉन 2 पाई स्क्वायर सिग्मा रेस्ट टू द पावर 1/4 into 1 upon small r raised to the power 3/4. I mean equilibrium temperature is inversely proportional to radius of that portion raised to the power 3/4. It means as r decreases, अगर r घटेगा तो t बढ़ेगा. As r decreases, equilibrium temperature increases. When t equals मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलामेंट. प्यारे बच्चों, जो टंगस्टन का इवेपोरेशन होगा उससे रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा. जब रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ेगा. जब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलामेंट के इक्वल हो जाएगा तो उस पोर्शन पे फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा और फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा. गॉट इट? दिस इज ऑब्वियस दैट the smaller sections are more liable to break. According to the Wiens displacement law, बच्चों विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मैं आपको रेडिएशन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा. The wavelength of emitted radiation becomes equal to b by t, where b is called Wiens constant and t is equilibrium temperature. प्यारे बच्चों, लैम्डा को हम लोग लिखते हैं रेडिएशन का जो फोटॉन होगा उसका जो वेवलेंथ होगा फ्री स्पेस में होगा c बाई न्यू. इज इट? c बाई न्यू, c is speed of radiation in free space divided by frequency of the radiation equals b by t. C constant, b constant, it means nu will be directly proportional to t. Nu will be directly proportional to t. Since the filament breaks at higher temperature, hence light is emitted at higher band of frequency nu. आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज होगा उस सेगमेंट का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो मेल्ट होते वक्त जब टी लार्ज होगा तो इमिटेड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फिलामेंट ब्रेक्स एट हायर टेम्परेचर, hence light is emitted at higher band of frequency is nu. Correct option B. Correct option B. Then due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament, the effective radius R of the filament decreases and its overall resistance R increases.
बच्चों उस सेगमेंट का जब रेडियस डिक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, तो सेगमेंट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। Therefore, at constant supply voltage V, power consumption decreases towards the end of the life of the bulb. बच्चों पावर कंजम्पशन उस पूरे फिलामेंट का डिक्रीज होगा, बिकॉज पावर कंजम्पशन P इक्वल्स V स्क्वायर बाई आर, फार्मूला पढ़े हो फॉर ओमिक रेजिस्टेंसेस। तो ओवरऑल R उसका डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट मान के चलो तो ये रेशियो बढ़ेगा, इज इट? सॉरी बच्चों उल्टा बोल गया, रेजिस्टेंस आर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस आर इंक्रीज होगा, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ये रेशियो डिक्रीज होगा, पावर कंजम्पशन डिक्रीज होगा, पावर कंजम्पशन डिक्रीज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस क्वेश्चन के दो करेक्ट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इज इट? वन मोर क्वेश्चन। A moving coil galvanometer has 50 turns and each turn has an area 2 into 10 power minus 4 square meter. The magnetic field produced by the magnet inside the galvanometer is 0.02 Tesla. The torsional constant of the suspension wire is 10 power minus 4 Newton meter per radian. When a current flows through the galvanometer, a full-scale deflection occurs if the coil rotates by 0.2 radian. The resistance of the coil of the galvanometer is 50 ohm. This galvanometer is to be converted into an ammeter capable of measuring current in the range 0 to 1.0 ampere. For this purpose, a shunt resistance is to be added in parallel to the galvanometer. The value of this shunt resistance in ohm is। बच्चों मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी करे हो। For the full scale deflection of the galvanometer coil, magnetic torque must be equal to restoring torque। प्यारे बच्चों अगर पॉइंटर गैल्वेनोमीटर का रुक जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के बाद, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल पे नेट टॉर्क जीरो जरूर होना चाहिए तभी रुकेगा। एक लगता है मैग्नेटिक टॉर्क और एक स्पाइरल स्प्रिंग से लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तभी जाके वो रुकेगा, कॉइल रुकेगी। आई मीन फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद गैल्वेनोमीटर की कॉइल रुक जाएगी। फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक टॉर्क का पढ़ाऊंगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, फॉर्मूला होता है ना ये भी। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद कॉइल से बने वाली करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कही जाती है, सिंबल IS होता है। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर कॉइल होती है, कैपिटल ए एरिया ऑफ द कॉइल होता है, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। बी कॉइल के पोजीशन पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्पाइरल स्प्रिंग लगाएगा उसका फॉर्मूला होता है C into थीटा S। लेकिन ये फार्मूला काम करता है वैलिड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। माना जाएगा कि जो कॉइल है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। Where IS is full scale deflection current, theta S is full scale deflection in radians, capital A is area of the coil, B magnetic field intensity at the coil, capital A number of turns in the coil, C is torsional constant of the suspension wire। बच्चों कभी कभी स्पाइरल स्प्रिंग की जगह पे सस्पेंशन वायर इस्तेमाल होता है, तो सस्पेंशन वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट C कहलाएगा। इस फार्मूले से मैं IS का फार्मूला क्रिएट करूंगा। NAB से बोथ साइड को डिवाइड कर दोगे तो IS का फार्मूला आता है C थीटा S अपॉन NAB।
आपकी क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, देन सी इन एस ऑन इट इज़ 10⁻⁴, थीटा एस इन रेडियंस इज 0.2, कैपिटल एन इज 50, कैपिटल एस 2 into 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, बी मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.02 टेस्ला। बच्चों इसको सॉल्व करने पर आता है 0.1 एम्पियर से इक्वेशन नंबर 1। I mean आपकी क्वेश्चन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट फॉर द गैल्वेनोमीटर कॉइल comes out 0.1 ampere, is it? For the conversion into a meter, given that RG is 50 ohm, upper limit of current range I equals 1.0 ampere, और हम लोगों ने मीटर बनाने के लिए एक कंडीशन डिराइव किया था। We already know the formula IS into RJ equals I minus IS into RS। RS को शंट रेजिस्टेंस बोला गया था और RG था गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस, I था अपर लिमिट ऑफ द रेंज ऑफ अ मीटर, IS था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। सो बच्चों ये फार्मूला हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। यहाँ से RS की वैल्यू निकालोगे, शंट रेजिस्टेंस, फार्मूला आता IS RG अपन I माइनस IS। आपके क्वेश्चन में अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कि IS आता है 0.1, RG गिवन है 50, I की वैल्यू गिवन है 1 एंड IS है 0.1। डिफरेंस आएगा 0.9, न्यूमरेटर में आएगा 5, यू मस्ट से 50/9, दैट इज 5.5555 ओम। दैट इज RS will lie between 5.55 ohm to 5.56 ohm। प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसी को आप टिक करोगे, RS will lie between 5.55 to 5.56, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जहाँ पे लिखा होगा उसको टिक करोगे। डन। सो प्यारे बच्चों स्टेडी एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स थे लेवल 3 के, वो आज कंप्लीट करा दिया आपको। ट्रांजिएंट एनालिसिस में कुछ चीज़ें अभी मुझे पढ़ाना बाकी था, तो वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब मैं एलिमेंट्री सीरीज आपको पढ़ा रहा था तो ट्रांजिएंट एनालिसिस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस मैंने करा दिए थे, लेकिन जो ग्राफ बनाए गए थे उसकी ग्राफिकल एनालिसिस मैं नहीं कराया था। अब मैं आपको एडवांस वर्जन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको जितने ग्राफ मैंने बनाए थे पहले उस सब के एनालिसिस आज सिखाने जा रहा हूँ, सो दैट आपको बेटर कमांड हो जाएगा। तो मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस चैप्टर पे आ रहा हूँ और इसकी ग्राफिकल एनालिसिस आपको कराने जा रहा हूँ। सो प्यारे बच्चों मैंने आपको चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ाया था, तो उसका डेरिवेशन दिया था चार्ज क्यू का। तो पता चला था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैपेसिटर पे चार्ज क्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, इनफाइनाइट टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो उसका सिंबल क्यू नॉट था, डिराइव करने पर उसकी वैल्यू C इंटू EMF आया था, और ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड आया था पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्रोथ ऑफ चार्ज का बच्चों ग्राफ ऐसा आपको मैं बता चुका हूँ, इसका डेरिवेशन भी बता चुका हूँ। ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है आज मैं इसके एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। कर्व ट्रेसिंग टेक्निक मैंने आपको फिजिकल मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप भूल गए हो तो उसको रिवीजन कर लेना। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट कर लेना, तो कर्व ट्रेसिंग टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। ये ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स अपसाइड क्यों दिखता है आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, और इसका जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो मैं यूज करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ग्रोथ ऑफ चार्ज में Q का फॉर्मूला आया था Q नॉट इंटू 1 माइनस E पावर माइनस T बाई टाउ। तो Q का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे,
फर्स्ट डेरिवेटिव का मीनिंग होगा डी क्यू बाई डी टी, आई मीन डी डी टी ऑफ क्यू। डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में ला के रखो। बच्चों क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये डिफरेंशियल के बाहर निकल आएगा, उसको बाहर निकाल दिया। अब मिलेगा डी डी टी ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो यहाँ 0 लिख डालो, माइनस की जगह पे माइनस लिखो। फिर ई पावर माइनस टी बाई टाउ का जो डेरिवेटिव होगा, इसमें इंटरनल कांस्टेंट -1 बाई टाउ कॉपी पेस्ट हो जाता है, सिखा चुका हूँ। इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ फिर से लिखा जाता है। याद रहे कि टाउ एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आती है क्यू नॉट बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। प्यारे बच्चों, मैंने कर्व ट्रेसिंग टेक्निक में पढ़ाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यू नॉट भी पॉजिटिव, टाउ भी पॉजिटिव, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू कम्स आउट ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो क्यू फंक्शन है वो टाइम के किसी भी डोमेन में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसलिए आपका ग्राफ इंक्रीजिंग दिखाया गया है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करने पर पॉजिटिव आता है। कर्वेचर का कॉन्सेप्ट जानने के लिए, नेचर ऑफ कर्वेचर समझने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जानना जरूरी होता है। तब मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डी टू क्यू बाई डी टी टू, इसको कहते हैं डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर से ला के यहाँ ब्रैकेट में रख दो, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे ला के पेस्ट करो। फिर कांस्टेंट क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर आएगी। ई पावर माइनस टी बाई टाउ का टी में डिफ्रेंशिएट करो तो -1 बाई टाउ कॉपी पेस्ट होगा। फिर ई पावर माइनस टी बाई टाउ रिपीट होगा। फिर इस क्वांटिटी को इसमें मल्टीप्लाई करो। नाउ दिस कम्स आउट माइनस क्यू नॉट बाई टाउ स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। यार बच्चों, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है और ये नेगेटिव साइन इसको स्ट्रिक्टली नेगेटिव बनाता है। आई मीन जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आ रहा है बच्चों, डिराइव करने पर किसी भी टाइम डोमेन में नेगेटिव ही आ रहा है। मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग टेक्निक में पढ़ाया था कि जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स सबसाइड। योर फंक्शन विल बी कॉन्वेक्स सबसाइड फंक्शन। इट मीन्स क्यू वर्सेस टी का ग्राफ इंक्रीजिंग दिखेगा और कॉन्वेक्स सबसाइड दिखेगा। और ये पहले से मैं आपको बता चुका हूँ, जो आज मैं एनालिसिस आपको सिखा रहा हूँ। क्यू वर्सेस टी का ग्राफ इंक्रीजिंग दिखेगा और कॉन्वेक्स सबसाइड दिखेगा। और फार्मूले से पता चलेगा जब टी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल टू क्यू नॉट हो जाती है। और क्यू नॉट की वैल्यू से इंटू ई आप डिराइव कर चुके हो। तो बच्चों, ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है वो मैंने आपको आज सिखा दिया। देन कम टू नेक्स्ट डेरिवेशन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज चार्जिंग करंट I. At any moment t equals t, the charging current I is defined as dq by dt, I mean rate of flow of charge or rate of increase of charge dq by dt. फिर dt of q, बच्चों q की वैल्यू ला कर ब्रैकेट में रख दो। आपको याद होगा कि q नॉट की वैल्यू आती है c इंटू ई और टाउ को हम लोग बोलते हैं r इंटू सी। यहाँ q नॉट पुट किया, यहाँ टाउ पुट किया, ये पूरा का पूरा q का फार्मूला है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, निकाल लिया। फिर 1 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होगा, यहाँ 0 लिख लिया। फिर इस पूरी क्वांटिटी का जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट हो जाता है, दैट इज -1 बाई आर सी कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे। बच्चों, इस माइनस के बगल में -1 बाई आर सी आएगा तो मल्टीप्लाई होके 1 बाई आर सी होगा इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी रिपीट हो जाएगा। फिर सी और सी कैंसिल आउट होगा। फिर यहाँ पी बाई आर बचेगा और एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी बचेगी। तो फाइनली जो चार्जिंग करेंट है उसका फॉर्मूला मिलता है ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ई बाई आर को पीक वैल्यू ऑफ करेंट बोलते हैं, इसको आई नॉट सिंबल से डिनोट करते हैं, आर सी को टाउ से डिनोट करते हैं।
ये बन गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आई नॉट इक्वल सी बाई आर, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, इसके एनालिसिस करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस देखिए। So our function is I equals I naught into e power minus t by tau. Then come to first derivative first. dy by it is dt of I की वैल्यू ब्रैकेट में रखो, I naught कांस्टेंट उसको आउटसाइड कर लो, कर लिया। Then dt of e power minus t by tau. dt of e power minus t by tau बच्चों इसमें इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होता है। आई मीन -1 बाई टाउ यहाँ साइड में कॉपी पेस्ट होगा, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर ई पावर माइनस टी बाई टाउ को रिपीट कर दिया, फिर -1 बाई टाउ को आई नॉट में मल्टीप्लाई कर दिया। दिस कम्स आउट माइनस आई नॉट बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा। इट मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने आई का निकाला वो टाइम के किसी भी डोमेन में नेगेटिव होगा। तो जब टाइम के किसी भी डोमेन में नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो करंट आई है वो ग्राफ में डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाई जाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाई जाएगी। कर्वेचर कैसा दिखेगा उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज d2i बाय dt2, दैट इज dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, कांस्टेंट आई नॉट बाई टाउ को आउटसाइड ले लिया, फिर dt ऑफ ई पावर माइनस टी बाई टाउ करूँगा। तो इंटरनल कांस्टेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। फिर इस इंटरनल कांस्टेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे मिलेगा बच्चों आई नॉट अपॉन टाउ स्क्वायर टी पावर माइनस टी बाई टाउ। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा टाइम के किसी भी डोमेन में। और जब भी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड फंक्शन। इट मीन्स आई वर्सेस टी का ग्राफ बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और कर्वेचर उसका कॉनकेव अपसाइड होगा। यही मैंने ग्राफ में दिखाया है। बच्चों करंट चार्जिंग करंट आई का टी के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा और कॉनकेव अपसाइड होगा। बच्चों आई के इस फार्मूले में, ये आई का फार्मूला है, जब यहाँ टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, इज इट, सॉरी आई का फार्मूला ये है बच्चों, ये है आई का फार्मूला। जब टी को 0 पुट करोगे, टी पावर 0 1 आएगा और आई की वैल्यू आई नॉट आएगी। इसका मतलब जब ग्राफ बनाओगे तो टी इक्वल्स 0 पर आई की वैल्यू मैक्सिमम दिखाओगे आई नॉट, वो ग्राफ में दिखाया गया देख लो। टी इक्वल्स 0 पर आई की वैल्यू मैक्सिमम दिखाया गया इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट होता है ई बाई आर, एज इट। फिर जब टी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और 0 इंटू आई नॉट 0 होगा। आई मीन जब टाइम टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो करंट आई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। वो भी ग्राफ में दिखाया गया है कि जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो करंट आई घटते घटते 0 हो जाएगी। आई मीन ये जो टाइम एक्सिस है इस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करने वाले टेंजेंट को एसिम्पटोट कहते हैं। तो टाइम एक्सिस इस ग्राफ के लिए एसिम्पटोट होगा, और टी इक्वल 0 पर आई की वैल्यू आई नॉट होगी, जो कि दिखाया गया है। और देखने में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कॉनकेव अपसाइड होगा। कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों एनालिसिस जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफिकल होते हैं, तो फार्मूला आप डिराइव कर ले जाते हो और जो मेथड पता होगा तो कैसा दिखेगा वो भी आप डिसाइड कर ले जाओगे। सो प्यारे बच्चों मैंने चार्जिंग करंट आई का भी आपको ग्राफ की एनालिसिस सिखा दिया। सो बच्चों टाइम ज़्यादा होने जा रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।
फिर बचे हुए जो ग्राफ होंगे उनके एनालिसिस में आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। और एक बार फिर से मैं आपको कमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। प्यारे बच्चों, आप बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, रूटीन से वर्क करना, नींद ज़रूर पूरी कर लेना। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी नींद पूरी रहेगी तो आपके माइंड का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए रात को पूरी रात जागने की गलती मत करना। रिवीजन कुछ इस तरह से प्लान करो कि आप अपनी नींद पूरी कर सको। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।